was filled with thousands and thousands of polyps. और मतलब आपने फैप पढ़ा होगा, Yes, Familial, yes, yes. Adenomatous, Polyposis. Polyposis, yes. हाँ, वो हमने अपनी आंखों से उस वक्त देख के उसको केस रिपोर्ट किया था, क्योंकि वो हमारी मेरी लाइफ का तो वो पहला ही कोई मतलब हंड्रेड्स नहीं थे, वो म्यूकोजा नजर ही नहीं आता। आई वाज क्योंकि तो नाइट शिफ्ट है, तो बड़ा ही मैं डिसअपॉइंटेड हुई। लेकिन फिर मुझे हुआ कि चलो एटलीस्ट ये तो है कि आप काम कर सकते हैं। तो पैथोलॉजी में तो खास हम जो करते तो नहीं, आई एम अ बोर्ड Hello everyone, welcome to the first episode of Women with Steths, Pakistan's first ever podcast dedicated to women in medicine and women health. Through this initiative, we aim to amplify the voices of women in Pakistan's healthcare system and beyond. I am the president and the co-founder at Women with Steths, and also your co-host for today. I would now like to hand over the mic to Dr. Amara, who is our main host for today. Hello, assalamu alaikum everyone. I am Dr. Amara. I am the host for Women with Steths. I am a doctor. I graduated from Nobel Medical College in 2021, after which I completed my house job from Civil Hospital Karachi, and now I plan to pursue otolaryngology or ENT as my postgrad specialization. So we will be beginning this first episode today. And before we begin, let's talk about what the episode is going to be. So today's episode is going to be focused on pursuing a non-clinical field after graduation. We will be discussing the benefits and challenges of pursuing pathology as the postgraduate field. And moreover, we will also be talking about experiences as a medical teacher. And in today's episode, the guest is a very special one. She is special to everyone at the university she teaches, which is Sindh Medical College. I would like to say that she is a perfect embodiment of wisdom and warmth and an inspiration for all of us at Women with Steths. I warmly welcome Dr. Nazish Jaffar, who is a pathologist and lecturer at Sindh Medical College, Karachi. And beyond the lab, she is a writer and poet as well. Also, her recently published work is a collection of poems called Silent Whispers, which is a must-read for everyone. Thank you so much, Dr. Nazish, for joining us this afternoon. And let's talk about a bit about yourself, and then we will be talking about today's episode as well. Thank you so much, Amara, Araj, Women in Steths, for having me. Yeah, sure, why not? I love to speak. My students know that I love to speak. So, go shoot the question. सही। अच्छा, सो जैसे हमें बात की कि आज की एपिसोड जो है वो इसी बारे में है कि एक नॉन क्लिनिकल फील्ड को परस्यू करना, विच इज पैथोलॉजी. सो लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट कि आपने, डॉक्टर नाजिश, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया. सबसे पहले तो हम बहुत ही बैक ट्रैक चलते हैं. हाउ यू चोज MBBS? अम्मा अब्बा की मर्जी थी या अपनी थी? और फिर उसके बाद जब आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, एंड आफ्टर दैट यू प्लान टू परस्यू पैथोलॉजी, विच इज़ अ नॉन क्लिनिकल फील्ड. एंड बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल माई सेल्फ, आई नो कि हर स्टूडेंट्स का जो अंडर ग्रेड में होते हैं, तो हम सबके ना जो ड्रीम्स होते हैं वो यही होते हैं कि वी विल बी वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, हमने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और नॉन क्लिनिकल फील्ड, दोज आर, आई वुड से, दोज आर द बैकबोन्स ऑफ क्लिनिकल फील्ड इवन, बट उनके बारे में इतनी ज्यादा ना बात होती है, ना किसी का रुझान उतना ज्यादा होता है. सो हाउ डिड यू डिसाइड टू परस्यू अ नॉन क्लिनिकल फील्ड, एंड हाउ वाज द जर्नी फॉर यू लाइक? लॉन्ग जर्नी जी, लॉन्ग टाइम बैक. बिल्कुल अब्बा की चॉइस थी 100%. मेरा ख्याल है 2 साल मैंने रो के निकाले थे जब मुझे नेट में पढ़नी आई. हेटेड नेट, रट्टा नहीं लगता था मुझसे. मेरे लिए रट्टा लगाना अभी भी बहुत मुश्किल है. कांट रोट लर्निंग मुझसे नहीं होती. So it was totally a decision of my father, and it was also his decision that I'll go to Nobel Medical College and nowhere else. तो उन्होंने कहा कि बस इतने नंबर होने चाहिए, इतने मार्क्स आने चाहिए कि सीधे सीधे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन में चले. तो ये था कि मैथ्स मेरी अच्छी थी, इट वाज नॉट बैड, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत डराया हुआ था कि मैथ्स बगैर ट्यूशन के मैथ्स नहीं हो सकती, इंजीनियरिंग में बहुत मैथ्स है, फिजिक्स टफ होती है, केमिस्ट्री मुझसे नहीं होती थी.
बायो आई यूज्ड टू लव। तो फिर यही हुआ कि दो मेरे पास ऑप्शन थे, इधर आई वुड गो टू इंजीनियरिंग साइड और मेडिकल। तो मैंने प्री मेडिकल एरिया, प्री मेडिकल के बाद नंबर अच्छे आ गए, सीधे सीधे एडमिशन डाउन में हो गया। तो अब तो आई वाज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो 2 साल मुझे बड़े मुश्किल लगे, क्योंकि मेहनत से मैं नहीं डरती थी, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं बने थे शुरू में, है ना, तो वो जरा एडजस्टमेंट वाज द प्रॉब्लम। लेकिन जब हमारे क्लिनिकल शुरू हुए थे इंडिया में, देन आई फेल इन लव विद फील्ड। भाई मतलब इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, और इसके जैसी कोई और फील्ड हो ही नहीं सकती। तो आई जस्ट आई यूज्ड टू स्टार्ट, आई स्टार्टेड गेटिंग accommodated, और मुझे अच्छा लगने लगा फिर मेडिसिन करना। तो इसलिए बस ये जर्नी थी। और थर्ड ईयर में मुझे याद है शायद मेरा फर्स्ट या सेकंड वार्ड पीडियाट्रिक्स था, और कोई खास बच्चे मुझे इतने पसंद नहीं थे वैसे, लेकिन ये है कि लेकिन पता नहीं क्यों मजा आया। आई मीन एडल्ट मेडिसिन, एडल्ट पेशेंट्स के साथ के मुकाबले में मुझे बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगा काम करना। That's true. तो मुझे पता नहीं, एक अजीब सी एक अटैचमेंट फील होती थी उनके साथ। जब मैं स्क्वाड में जाती थी या किसी को तकलीफ में देखती थी, मैनेज करना लोगों को मुश्किल लगता है, मुझे इजी लगता था। तो आई थॉट कि मैंने पीडियाट्रिक्स ही करना है, इसलिए मैंने जब अपना हाउस जॉब सेलेक्ट किया तो आई डिड पीडियाट्रिक्स। और मेरा प्लान यही था कि मैं सीधे हाउस जॉब के बाद मैंने बीसीएच करना है, डिप्लोमा देके, और फिर इधर एफसीपीएस की तैयारी शुरू कर दी। मेडिसिन देना पड़ता है उस चीज के लिए, वो पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो उसके लिए मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी, और फॉरन हाउस जॉब के बाद दिया था तो मेडिसिन में मेरा क्लियर नहीं हुआ। अब आई वाज लाइक, उसके साथ ही फिर वो मंगनी, शादी, एंगेजमेंट, एवरीथिंग वो सब शुरू हो गया। जब शादी हो गई तो फिर फिर ये हो गया कि भाई नाइट शिफ्ट नहीं करनी है। अब आई वाज, ये नहीं कहा जा रहा कि घर बैठ जाओ। तो आई वेंट टू माय सुपरवाइजर इन पीडियाट्रिक्स, और उन्होंने मुझे कहा कि देन यू हैव टू ऑप्शन टू इधर गो फॉर डेमेटोलॉजी और गो फॉर पैथोलॉजी। डेमेटोलॉजी मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, पैथोलॉजी का मुझे कुछ पता ही नहीं था जिसमें करते थे ऑनेस्टली। डेमेटोलॉजी की तो वार्ड रोटेशन की होती है ना हमने, बिल्कुल लेकिन पैथोलॉजी की हमारी कोई रोटेशन नहीं होती। ऐसे ही है। तो अब हम इस पर भी वैसे मैं आगे चल के बताऊंगी किस तरह हम कुछ काम करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह विल टेक सम स्टेप कि हम करिकुलम में कुछ चेंजेस करेंगे कि बच्चों को पैथोलॉजी का एक्सपोजर हम लैब रोटेशन कराएंगे। वेरी ट्रू। क्योंकि देखिए हमारे जमाने में ना लैब्स होती थी, वेट लैब्स होती थी, अब तो ड्राई लैब्स हैं। आप बिल्कुल हर चीज जो है वो पावर पॉइंट पे पढ़ते हो, तो आपको क्या पता कि लैब का माहौल क्या है। बिल्कुल और ऐसे ही हमें है। भी हमारे पास फिर भी लैब होती थी, हम जैम ट्रेनिंग करते थे, हम माइक्रोस्कोपी करते थे, हमारा एग्जाम होता था माइक्रोस्कोपी पे। तो हम फिर भी कुछ ना कुछ करते थे, एज कम्पेयर टू यू पीपल, यू जस्ट सीइंग द पिक्चर्स इन द बुक्स और मे बी इन द पावर पॉइंट, दैट्स इट। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। तो सिलसिला ये हुआ उसके बाद कि सॉरी, सिलसिला ये हुआ उसके बाद कि जब मैं पैथोलॉजी का मुझे किसी ने कहा कि आपने अपार्टमेंट देना है। तो देखिए पढ़ाई तो हमें सबको करने आती है, क्योंकि हम लोग बड़े बिल्कुल पक्के हो जाते हैं फाइनल ईयर तक, ऐसे ही राइट। है। लेकिन फिर भी मुझे कोई पैथोलॉजिस्ट मिल गई थी, बहुत अच्छा गाइड किया। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना वो पैथोलॉजी क्लियर हो गया, पार्ट 1। अब उसके बाद जब रेजिडेंसी की बात आ रही थी तो उन्होंने कहा कि रेजिडेंसी आपने करनी है अगर, तो आप जो है देखिए पैथोलॉजी की फर्दर सब फील्ड हैं। इस वक्त आपके पास 5 सब फील्ड हैं पैथोलॉजी की। जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करती थी तो 4 फील्ड थी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड केमिकल पैथोलॉजी। अब हमारे पास इम्यूनोलॉजी भी है और मॉलिक्यूलर भी आती है, तो 6 हो गई, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। लोग इसलिए कम हैं कि पता ही नहीं है, डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि ये फील्ड होती है। और ज्यादातर लड़कियां उसी तरह आती हैं जिस तरह मैं गई। मतलब जब आप हर जगह से आपके डोर्स क्लोज हो जाते हैं, देन आपको लगता है कि हाँ चलो आप पैथोलॉजी करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैथोलॉजी में लोग बाय चॉइस नहीं आते। मैंने अपने से सीनियर भी, अपने लेवल के भी लोगों को देखा है कि बाय चॉइस आए हैं, उनको वाकई पसंद है। एक चीज मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, वो ये है कि नॉन क्लिनिकल पैथोलॉजी दोनों तरीके से, वो बेसिक भी है और क्लिनिकल भी है। क्योंकि जब आप लैब में काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो पेशेंट डीलिंग भी होती है, पेशेंट के अटेंडेंस से भी डीलिंग होती है। और आप, अगर मैं पैथोलॉजिस्ट क्योंकि थी, तो वी आर ऑन द फोन ऑल द टाइम, यस बिकॉज आपने, हमारे पास सैंपल कौन भेज रहा है? सर्जन भेज रहा है। हमें सर्जन से पूरी डिटेल लेनी है। फिर फ्रोजन कौन भेज रहा है? फ्रोजन सेक्शन जो हो रहा है वो भी सर्जन भेज रहा है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं हम उनसे 1 to 1 इन टच है ऐसे ही जिन्होंने है। सर्जरी की।
तो इस और फिर रेडियोलॉजी, अगर बोन का केस आया तो मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाऊंगी ओपिनियन देने के लिए, ठीक है ना। गायनी से केस आ रहा है तो फिर गायनी की हिस्ट्री लेंगे। तो हम हर जगह से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में होते हैं पैथोलॉजी में, और आप हर तरह के केसेस देख रहे हो। तो इस थिंग, तो इस तरह मैं पैथोलॉजी में आ गई। पैथोलॉजी में आके अब टीचिंग में कैसा है, आपका ये सवाल था। तो लैब जब मैं करती थी रेजिडेंसी, एंड देन आई हैड सर्टेन इश्यूज, क्योंकि अब शादी हुई भी थी, तो यू नो हेल्थ इश्यूज एंड फैमिली एक्सपेंड करनी है, वो सारे इश्यूज, तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा। जब मैंने ब्रेक लिया, अब जब पैथोलॉजी में हमारी इवनिंग की लगती थी, शाम के 7 बजे तक भी, यू नो, हफ्ते में 1-2 दफा बैठना पड़ता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं इवनिंग्स वाली कोई जॉब कंटिन्यू करूँ। तो मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक के बाद मुझे और पहाड़ लग रहा था कि आई कैन नॉट। तो मेरा एफसीपीएस जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद मैंने कहीं 2-3 साल के बाद जब मेरी बेटी स्कूल गोइंग हो गई, तो फिर देन आई स्टार्टेड टीचिंग एट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और वहाँ पे मुझे कुछ सीनियर मिले जिन्होंने कहा कि यू विल बी वेस्टिंग योरसेल्फ अगर आप टीचिंग करते रहो, आपके पास यू नो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि इसमें एमफिल भी होता है। आई मीन एफसीपीएस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। तो फिर मैं एमफिल के लिए बीएमएस आया आ गई, विच इज एट जेपीएम से। और यहाँ पे फिर मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया। जैसे ही मेरा मेरा लास्ट ईयर चल रहा था तो जेएसएम जॉब आ गए। यहाँ पे मैंने लेक्चरर की पोस्ट के लिए टेस्ट दिया, हमारा टेस्ट हुआ था उस वक्त, और वो मेरा क्लियर हो गया और मैं लेक्चरर बन गई। अब मैंने एमफिल दिया है, कोई उसका थीसिस डिफेंस आफ्टर 6 months और सो, विद इन 1 year आफ्टर लेक्चरशिप मेरा थीसिस डिफेंस हो गया, और उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। तो इस तरह से मैं टीचिंग में। Sahi, Zabardast. That's such a, mashallah, long journey, and I'm so glad that you know, found your way, even though, you know, you had your hurdles, you had your fair share of troubles as well. But through it all, आपने अपना रास्ता निकाल लिया, and that's so good to know. और डॉक्टर नाजिश, आपने एक बात बड़ी दुरुस्त कही कि हमें मेडिकल स्कूल में जब हम होते हैं अंडर ग्रेड के लेवल पे, तो हमें पैथोलॉजी या ये वाली फील्ड्स हैं, इनका एक्सपोजर होता ही नहीं है। इनका एक्सपोजर सिर्फ रॉबिन्सन्स की हद तक होता है, ज्यादा इरफान मसूद या पैथोमा की हद तक होता है, दैट्स इट। और उसमें भी हम होते हैं ना, थोड़े बहुत रट्टे लगा रहे होते हैं, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं से पैटर्न्स बना के अपने अपने जहन में बिठा लेते हैं कि भाई फलाना डिजीज की पैथोलॉजी ऐसी लगती है। बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच का होना इतना ज्यादा जरूरी है। और मुझे इसका अंदाजा तब हुआ था जब मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद मैं भी आई वाज सर्चिंग के नो which field should I pursue. I had the inclination towards surgery, so I knew that I will be choosing something with surgery in it. But during that process, I had read a book which was called How to Choose a Medical Specialty. Brian J. Freeman की book है, if I remember it correctly. तो उसमें ना उन्होंने एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। और वो बुक पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि देयर सो मेनी फील्ड्स एंड देयर सो मच स्कोप इन ऑल ऑफ दोस एरियाज एज वेल। और जो नॉन क्लिनिकल साइड है उसको हम इतना ना कैजुअली वी जस्ट कीप इट अवे कि ओके ये तो वो वाली फील्ड्स हैं कि अगर कहीं और नहीं होता तो लेट्स वहां पे तब जा रहे होते हैं। जबकि इन इन एक्चुअल रियल लाइफ मेडिसिन, जैसे यू ऑल्सो टोल्ड कि वन टू वन इंटरेक्शन आपका कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है विद अ पैथोलॉजिस्ट। लाइक आई प्लान टू बिकम अ सर्जन एज वेल, सो आई नो कि जब खासतौर पे सर्जरी के दौरान फ्रोजन भेज रहे हैं तो फौरन के फौरन वी नो वी नीड टू हैव द रिपोर्ट, सो दैट्स वेयर दिस फील्ड कम्स इनटू ह्यूज प्ले एज वेल। बट हमें इन सबका कुछ आइडिया नहीं होता जब हम अंडरग्रेड होते हैं। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि भाई और भी फील्ड्स है। And that book made me realize that medicine has something for everyone. So I'm so glad that you know, you worked your way around it and you found a field and made it work for you. So the next thing that comes into my mind when we talk about even though it's a clinical field but non-clinical in the sense के उस तरह से interaction नहीं होता पेशेंट से, तो मेरे जहन में जो चीज आ रही है वो ये है कि जैसे जब बच्चे होते हैं ना छोटे, और जब आप किसी से पूछो कि आपने बड़े होके क्या बनना है, और वो बोलते हैं कि यू नो वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड द नेक्स्ट थिंग यू आस्क देम कि ओके व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो दे से बिकॉज यू वांट टू हेल्प पीपल। दैट्स द आंसर मोस्टली, ऑल्दो वो हकीकत से कितना करीब या दूर है वो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये यूजुअली होता है ना कि दिस इंटरेक्शन दैट यू हैव विद पेशेंट्स,
that is what most doctors regard ke that is like the the highlight of the field or the rewarding part of the field. But being in a non-clinical field, what is your it factor जब आप pathology के काम में आते हैं कि what is the thing that keeps you going, and what are the moments that are like rewarding moments for you, or the benefits of working in pathology? आई थिंक एज अ होल मैं बात करूंगी, नॉट जस्ट पैथोलॉजी। जब पढ़ाने की बात करती हूँ, लेकिन आई resonate myself with being a teacher. So I am a teacher and I feel proud in that. I am so grateful that I'm in this field. और मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि काश मुझे कोई ऐसे पैथोलॉजी पढ़ाता जैसे मैं अपने बच्चों को। So I miss that thing, and when I look back to my undergrad years, तो शायद मुझे पैथोलॉजी की ओरिएंटेशन उस वक्त हो जाती है अंडरग्रेड ईयर्स में, जो नहीं हुई थी। तो रिवॉर्डिंग मोमेंट्स बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि मैं टीचिंग में एक्सीडेंटली आई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, मेरा एफसीपीएस कंप्लीट नहीं हुआ था और मुझे कुछ ना कुछ करना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरी हाफ रेजिडेंसी के साथ मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने अपनी सीवी उठाई और एक मेडिकल कॉलेज में गई प्राइवेट। मैंने कहा कि आपके पास जगह हो तो आप मुझे बुला लें। तो उन्होंने उसी वक्त मेरा इंटरव्यू करके मुझे कहा कल से आ जाए। मतलब ये हालत थी। तो ये बिल्कुल अल्लाह की तरफ से हुआ था। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने जाना है टीचिंग साइड पे। मैं शायद कोई लैब ज्वाइन कर लेती, लेकिन हाफ डिग्री के साथ वो भी नहीं हो सकता। तो टीचिंग में आना जो है शुरू से मुझे समझ नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिनको आप पढ़ा रहे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स बड़े मेच्योर होते हैं। ये वो बच्चे नहीं होते कि जिनको डंडे मार मार के आपने सिखाना है। आपने उनके एक अपनी एक रैपो बनानी है। आपने उनके लेवल पे आना है, उनकी साइकोलॉजी को भी समझना है। आपने ये नहीं कहना कि जी मैं ही ठीक हूँ। अच्छा, मेरी नेचर भी ये नहीं है कि मेरी नेचर बहुत अकोमोडेटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पॉइंट जो मेरे उसूल हैं जिनको मैं नहीं तोड़ती। लेकिन मेरी अकोमोडेटिंग नेचर है। अगर कोई बच्चा आके मुझे कहता है कि मैम आपने ये पॉइंट जो है ना बताया था और ये ऐसे है ऐसे नहीं है, मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि तुमने इंसल्ट किया, बिकॉज आई थिंक हमें हमेशा नॉलेज सीकर रहना है। हमें वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वाली बात है ना, वो मुझे इस फील्ड में लगती है। बेसिक साइंसेस में जब आप आते हो ना, जब आप स्टूडेंट्स के साथ हर वक्त इंटरेक्शन में होते हो ना, तो आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाते हो। तो मुझे अभी मैं अपनी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ और मुझे लगता है कि पीएचडी हो भी गई तो उसके बाद भी मेरा लर्निंग प्रोसेस इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, क्योंकि आई हैव बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर नाउ। वो इस फील्ड में रहने के साथ साथ उसमें मैंने रिसर्च भी सीखी, उसमें मैंने मेडिकल एजुकेशन भी सीखी, उसमें मैंने पैथोलॉजी भी सीखी। और अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि अब मुझे होता है कि जो जो चीजें मुझे आती हैं, नॉट जस्ट पैथोलॉजी, कोई भी चीज जो मुझे नहीं पता चलती वो मैं सिखाऊं। तो रिवॉर्डिंग मोमेंट ये होता है। एक बहुत रीसेंट मोमेंट अभी था, ऐसे तो बहुत वाक़े हैं और मुझे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, तो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वहां से भी याद रखते हैं, मुझे मैसेज आ रहा होता है कि आज हमने आपको बड़ा याद किया, आज ये डिस्कशन चल रहा था, आज मैंने ये अचीव किया है। तो वो अचीव करके हमें बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि आज हमने ये अचीव किया, या हम इस कंट्री चले गए, आपने इस कंट्री का बताया था, इस तरह की चीजें। तो अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम मैंने अपना यूएसएमएलई पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। योर प्रेजेंटेशन एंड योर स्लाइड्स हेल्प मी इमेंसली। तो मुझे एग्जाम क्लियर कराने में उनका बड़ा रोल है। तो आई वाज लाइक सच अ रिवॉर्डिंग मोमेंट फॉर मी कि अगर कोई एक भी, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तो एक जनरेशन प्रिपेयर करके निकाली है पढ़े लिखे अच्छे पाकिस्तानियों की, उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है। मेरा ख्याल है मेरे लिए तो रिवॉर्डिंग मोमेंट्स रोज के रोज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। That's so true, and that's so heartwarming as well. And especially जो lifelong learning वाली बात आपने कही, that is so true, because I also feel कि जब आप बेसिक साइंसेस से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी भी रहती है. It stays alive in you. And how I relate with that specifically is कि when I was in final year, तो that was a year when COVID hit ना, तो सब कुछ पॉज हो गया था. एंड इन दैट ईयर आई हैड मेड दिस अ गोल कि मैंने अपनी बेसिक साइंसेस को ना वापस से स्ट्रॉन्ग करना है, जो एनाटमी है, फिजियो, बायोकेम, एम्ब्रियो एक्सेट्रा. तो वो करते हुए I would do courses, I would do multiple courses in those subjects and I would restudy those courses. And उससे
sort of rekindle हो गया था my spark, when I had started medical school from. Because जब तक आप फाइनल ईयर में आते हैं तब तक आप क्लिनिकल करके आप उसी साइड पे हो जाते हैं और आपको पीछे की चीजें थोड़ी बहुत भूलने भी लगते हैं। भूल लेकिन वो जाते करके ना इतना इट फेल्ट सो कनेक्टेड, आई फेल्ट वही वाली चीज कि दैट लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाली चीज थी, जब आप लर्न कर रहे होते हैं, दैट कंटेंटमेंट व्हेन यू फील दैट यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर रिवाइजिंग समथिंग, you are retaining something. So that is so true, and especially in terms of teaching, I have a mentor of mine who says that the reason he does a lot of workshops, he teaches at a lot of workshop, is because he himself learns a lot from that. कि जब भी कोई नया रेजिडेंट उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी या कोई सर्जिकल टेक्निक के बारे में उनको बताता है या अपनी कोई गलती बताता है या कुछ भी, तो उनको उससे बहुत सीखने को मिलता है, उनकी अपनी प्रैक्टिस बहुत इन्हांस होती है। So I'm so glad that we think like that, and we have teachers that think like that. नाजिश, हम टीचिंग की बात कर रहे थे। सो इन अ रीसेंट लेक्चर यू मेंशन दैट कि आप सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्लोबल अकम्पलिशमेंट्स वगैरह के बारे में क्यों नहीं एम करते। लाइक आपने मेंशन किया था कि व्हाई नॉट माय स्टूडेंट्स एम फॉर द नोबेल प्राइज। सो आई फाउंड दैट टू बी अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इंस्पायर्स दैट विजन इन यू। अचीवमेंट किसको बुरी लगती हैं? अचीवमेंट हमेशा से जो होता है कि जब भी हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करना है। अगर मैं आपको अपने हवाले से बताऊं तो इट वाज once when I was on a break from my residency and I was home, I was not practicing medicine। उस जमाने में मैंने एड देखा था अखबार में और उसमें ये था कि स्टूडेंट्स के लिए वो था उसकी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और उसका ये था कि आप अप्लाई करें एंड देयर हायर एजुकेशन कमीशन will select you a few students to represent Pakistan at a meeting जहाँ पे सारे नोबेल लॉरिएट इकट्ठे। और जर्मनी में लिंडा एक शहर है वहाँ पे एवरी ईयर ये इवेंट। तो मैंने उसके लिए अप्लाई भी किया था। उसकी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका थ्रू आउट करियर में ना हाई अचीवर्स आप रहे हैं तो वो आपको फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इस्लामाबाद में आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे मिलना है उनसे, क्या बात करनी है, कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं वो मीटिंग अटेंड करूँ और somehow I was not shortlisted। तो मैं सोचती थी कि कैसा लगता होगा कि जब आप हाई अचीवर थे। क्योंकि जिंदगी में मैंने ये सीखा है कि जब भी आप, एक तो मेरा इंटरनेशनल लोगों से एक्सपोजर काफी रहा है क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ बहुत शौक से और जब मैं जाती हूँ तो लोगों से बात करती हूँ। जो भी वहाँ के लोग होते हैं, जो प्रेजेंटर्स होते हैं, जो अटेंडीज होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ के बारे में या एजुकेशन के बारे में या रिसर्च के बारे में। तो आपकी ना यू गेट अ वाइडर विजन। तो उससे मैंने ये सीखा कि जब नोबेल लॉरिएट से मिल सकते हैं तो हम नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीत सकते। आई मीन तो ईयर्स अगो जो पाकिस्तान ने साइंटिफिक बेसिस पे नोबेल प्राइज जीता था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, उसके बाद भी वो भी यहाँ नहीं रहते। तो आप देखें कि जब आप यूके में डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम की एक लाइब्रेरी है, पाकिस्तान में कोई है नहीं है। अगर कैर्न है स्विट्जरलैंड में, उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे वहाँ पे पूरा एक एरिया है। वहाँ पे हर साइंटिस्ट के नाम पे एक एरिया और एक गली है। तो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं ना बाहर इस वक्त, जबकि वो नहीं है दुनिया में। तो उनका काम अब तक लेबोरेटरी में प्रैक्टिस किया जाता है और लोग हैरत ज़्यादा होते हैं कि उन्होंने ये डिस्कवरी कैसे की थी। तो इसका मतलब है कि वी हैव द पोटेंशियल और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट आस्क माय स्टूडेंट्स, क्योंकि शायद मैं अब उसे एज से गुजर गई हूँ। जैसे आप साइंटिफिक बेसिस को हटा के लिटरेरी बेसिस पे भी तो नोबेल मिलता है। तो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो उर्दू में लिखते हैं उनकी शायद बात आगे तक नहीं पहुंच सकती, उनकी किताब वहां तक नहीं जाती, इसलिए शायद उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा जब ये सीजन आता है नोबेल प्राइज का तो मुझे बड़ी वो इनोवेशन होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो अपनी जो एक फीलिंग्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करूँ ताकि वो कोई ऐसी अचीवमेंट करके दिखाएं। और उनके अचीवमेंट में ऑब्वियसली मेरे लिए भी बड़ा ही प्राउड मोमेंट होगा अगर पाकिस्तान से कोई इस तरह का दोबारा से कोई प्राइज हम लेकर आते। Acha, so we have talked about the field of pathology, we have talked about teaching as well, और अब तक हमने अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में तो अच्छी खासी बात कर ली है। बट
Dr. Nazif, what do you think are some of the challenges or the hard parts of working in pathology, and especially as a woman? What do you think are the things that for future medical professionals should keep in mind as well if they plan to pursue pathology? Amara, I don't find bigger challenges in pathology as compared to the other clinical fields. क्योंकि देखें सेम ही होते हैं तकरीबन। जब आप रेजिडेंट हैं तो यू वर्क हार्ड, यू वर्क ऑन बोथ एस्पेक्ट। लाइक आप सर्जरी में भी कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपकी नाइट शिफ्ट नहीं होती। लेकिन अगर मैं हिस्टोपैथोलॉजी की, क्योंकि मैं हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, तो हिस्टोपैथोलॉजी में आपके पास एक इमरजेंसी होती है और वो होती है फ्रोजन सेक्शन। तो आपका रोटा लगा हुआ होता है, वो आप किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते। आपकी इवनिंग्स लगेंगी तो वो आपको पूरा काम करना है। आप एक दिन ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन ऑफ कर लिया तो वो टेबल, आपकी टेबल है ना, उसको स्लाइड की ट्रे पाइल अप होती चली जाती है। आप अपना पेशेंट तो हैंड ओवर करके जा सकते हो ना, लेकिन आप अपने केसेस हैंड ओवर नहीं कर सकते। वो केस आपको ही साइन आउट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे, और कोई डिफिकल्ट केस आ गया जो आपके घंटों खा जाएगा। देखिए, दो लोग हैं, दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो किताबों के बगैर उनका गुजारा नहीं। एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है, एक लॉयर है। लॉयर भी हर अपनी लॉ पढ़ने के लिए, उसको केस बनाने के लिए उसको किताब खोलनी है। इसी तरह हिस्टोपैथोलॉजी को इवन कभी कभी बहुत सिंपल से केस होता था, से फॉर एग्जाम्पल पोलिपोसिस, लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज आ जाती थी कि उसको ढूंढने के लिए हमें किताबें खोलनी पड़ती थी कि भाई ये क्या नई चीज आ गई। इतनी वेरिएशन है ना ह्यूमन टिश्यू। बिल्कुल। तो नहीं है कि जो आप किताब में देखते हैं कि कोलिसिस्टाइटिस के अंदर बस ये वाले फीचर्स हैं तो यही फीचर्स उस टिश्यू में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो बिगर चैलेंजेस इज दैट यू टू ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑल द टाइम एंड यू नीड senior people with you, your supervisor all the time to guide you through it. अगर आपके बेस्ट सुपरवाइजर्स हैं तो आप बहुत अच्छे पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस आपके बगैर सुपरवाइजर के आप पैथोलॉजिस्ट नहीं। तो चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी में देखो कोविड आया था, बहुत बड़ा चैलेंज था ना। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, कॉन्गो आता है, लैब में सारे केसेस आपको देखने हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोजर आपका है या मेडिकल टेक्नीशियन का है। तो दीज आर द चैलेंज। अदरवाइज ये है कि पढ़ना बहुत है, लेकिन साथ साथ रोज आप इतना काम कर रहे हो तो कि पढ़ाई भी होती है। तो नॉट नॉट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। But I do think that's a very patience inducing और patience testing field, क्योंकि आपने घंटों एक ही चीज पे लगे रहना है और उसमें कोई अगर नई चीज आती है, कोई वेरिएशन आती है, तो आपने वापस किताबों पे जाना है। और आई थिंक द वेरी कॉन्सेप्ट कि आपने घंटों एक चीज को ऑब्जर्व करना है, ये चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग भी लगती है। बट मुझे तो लगता है आई कैन नॉट एटलीस्ट डू दैट माई सेल्फ। मेरे अंदर पेशेंस की इतनी ज्यादा ना कैपेसिटी है नहीं। So I think that's a very patience testing field as well, Yes, if we it is. talk It is. like that. And It is. अच्छा, मुझे इसका ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कह लें या एक थोड़ा हवाला इस तरह से लगता था कि जब हम पेशेंट्स को फॉलो करते हैं एज ए रेजिडेंट और एज ए मेडिकल ऑफिसर, और हम ब्लड कल्चर की रिपोर्ट है उसको हम जब फॉलो कर रहे होते हैं, और 3 days 5 days एंड स्टिल इट सेज कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारे एंड पे तो वो सिर्फ कंप्यूटर पे लिखा आ रहा है कि अभी भी टाइम है, लेकिन आपके एंड पे आपको हर रोज जाके उस स्लाइड को देखना है कि अभी कोई उसको नई चीज देखना आई है। है, सही। उसमें ग्रोथ तो हुई है नहीं हुई इस प्लेस बिल्कुल में, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ आपको टिल कैसे नाउ। नो ग्रोथ। यस। सो दैट्स तो हम इट इज। हम तो आसानी से लिख हाँ देते हैं एनजी या नो ग्रोथ, but for the person who is working behind the scenes to actually find out the growth, वो एक बड़ा इतना सबर आमेज मरहले से गुजर रहा होता है। सही तो बात। speaking of that, what's a usual day like for a pathologist? How does your a day looks like as working in pathology? अच्छा, इसमें मैं आपको दो दो तरीके से बताऊंगी। अगर आप क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स लिंक्ड हैं, तो आपको लैब में भी काम करना होता है। जेएसएमयू की भी हमारी लैब है, अपनी डाउ की अपनी लैब है। तो जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो पढ़ाते भी हैं और साथ में अगर लैब वर्क भी करते हैं, ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट ने केस भी देखते हैं और फिर जो उसके लेक्चर स्लॉट्स आएंगे उसमें पढ़ाना भी है। तो आप केसेस देखेंगे, केसेस में मैं ज्यादा रिसर्च बेस्ड केसेस देखती हूँ। माइक्रोस्कोप आपके साथ होता है, तो आप अगर मेडिकल कॉलेज में अपने ऑफिस में भी माइक्रोस्कोप रख सकते हैं। ये सबसे मजे की बात है, मेरे पास रिसर्च वर्क बहुत आता है।
मास्टर्स लेवल पे, पीएचडी लेवल पे सब लोग जो एनिमल स्टडीज कर रहे होते हैं, फार्मा वाले लोग अपनी ड्रग्स देख रहे होते हैं, उसके इफेक्ट देखने के लिए टिश्यू तो हमारे ही पास लाते हैं। तो मैं रिसर्च में ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, वरना अगर कोई लैब डायग्नोस्टिक्स में इन्वॉल्व लोग हैं तो उनको लैब देखनी है, और वो बड़ा टाइम होता है क्योंकि पेशेंट सर पे खड़ा होता है। अगर आपने कहा कि मैं 7 दिन में रिपोर्ट दे दूंगी और सब Yes. आपने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री लगाई हुई है और आपको इंटरप्रिटेशन, अभी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बाद भी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है, उसको सीनियर को दिखाना है, बोर्ड बैठना है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं जहाँ भी आप होते हैं, तो वहाँ आपको अपना केस प्रेजेंट करना होता है कि भाई ये डिफिकल्ट है, इसको किस तरीके से हम किस लेवल पे बिल्कुल निकालें, साइन आउट करें। बिल्कुल तो ये चैलेंजेस होते हैं। और अ डे इज लाइक दैट कि आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, साथ में आपने जो है पढ़ाना है। अच्छा, पढ़ाना मुश्किल हो गया है। पढ़ाना सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा जाए, गए क्लास में, आपने रीडिंग कर ली पावर पॉइंट से और वापस आ गए। इवन इफ यू रीडिंग योर स्लाइड, आपको उससे सवाल बनाने हैं, आपको उसका टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, टेस्ट के क्वेश्चंस बनाने हैं, एनुअल एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर आपने पेपर रिव्यू करने जाना है, क्यू बैंक, आखिर तक एग्जाम तक आपने सुपरवाइज करनी है चीजें। तो बहुत सारे काम होते हैं दिन में responsibilities. के। जी। Yes, yes. सही। अच्छा, सो जो हॉस्पिटल्स वो होते हैं जिनके साथ कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड नहीं होते, तो हाउ डज दैट हम्म वर्क? लाइक उनमें पैथोलॉजिस्ट का या लैब्स में उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट में क्या होता है? बस फिर वो डायग्नोस्टिक में रहते हैं, वो सही डायग्नोस्टिक में रहते हैं और वो डायग्नोस करते हैं, केसेस साइन आउट करते हैं, बस उनका फिर ये सही काम सही है। सही जैसे सही आप अपने वार्ड जाते हैं, ऐसे वो अपने लैब जाते सही सही। हैं। Okay, that sounds interesting. Acha, so acha, when we talk about all the fields of medicine, or even the pathology is a very old field, but still इसमें इसको अभी भी हम emerging field, जैसे आपने बताया कि पहले आपके टाइम पे there were 4 subfields, but अब वो 6 subfields है, so we can still count it like an emerging field. So speaking from your experience and deriving from your experience, how do you think that as a society we have progressed in regards to women in emerging fields like pathology, and how do you think it's different from when you had started, और अब कैसे हालात हैं? What do you think about this? पैथोलॉजी के हिसाब से तो बहुत ही हमने देखा है कि बहुत प्रोग्रेस हुई है, और फीमेल्स डोमिनेटिंग फील्ड है ये। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं हैं, लेकिन फीमेल डोमिनेटिंग फील्ड है, ज्यादा है फीमेल्स उसके अंदर कम्पेयर टू अदर फील्ड। और अगर मैं पैथोलॉजी के हवाले से कहूँ तो हमारी सोसाइटीज हैं, इस दौरान हमने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट है, जिसकी एनुअल कांग्रेस होती है एवरी ईयर, और उसकी फर्दर सब सोसाइटीज हैं, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी सोसाइटी, माइक्रोबायोलॉजी की सोसाइटी, इम्यूनोलॉजी की सोसाइटी। सब लोग अपनी अपनी सोसाइटी की एजुकेशनल एक्टिविटीज, वर्कशॉप वगैरह भी करवाते हैं। प्लस जो एनुअल हमारी पैप कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान एसोसिएशन पैथोलॉजिस्ट, उसके हम लोग मेंबर हैं, मैं उसकी लाइफ टाइम मेंबर हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में वो कॉन्फ्रेंस होते हैं, हम जाएं, अपनी ईयरली रिसर्च जो भी हमने काम किया है वो प्रेजेंट करें वहाँ पे। इससे एक बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आप कोई रिसर्च वर्क करें, ताकि पता है कि कॉन्फ्रेंस आने वाली है, आपने प्रेजेंट करना है। दूसरा एक अच्छी बात यह है कि मैं लियाकत नेशनल की रेजिडेंट थी, और एक यूएच में भी मेरे काफी फ्रेंड सर्कल था। मैंने ये देखा है कि जो बड़े अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं अपने रेजिडेंट्स को बाहर इंटरनेशनल कोर्स वर्क करने के लिए, लोकम करने के लिए, कोर्स वर्क सही करने के लिए एनकरेज करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हिस्टोपैथोलॉजी तो पूरे सिस्टम की हिस्टोपैथोलॉजी होती है ना, लाइक जीआई भी होती है, बोन भी होती है, ब्रेस्ट भी होती है, डर्मा बिल्कुल भी होती है। अब दुनिया में जो है ना, वो हर सिस्टम का अपना एक्सपर्ट होता है, लाइक बिल्कुल डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट होगा, ब्रेस्ट बिल्कुल पैथोलॉजिस्ट होगा, और बोन होगा। लेकिन पाकिस्तान में एक पैथोलॉजिस्ट को सब कुछ देखना पड़ता है, यहाँ पे डर यस है पैथोलॉजिस्ट की। तो कुछ इंस्टीट्यूट, जैसे मैं शौकत खाना में एटीएच की बात करूँ, जो बड़े इदारे हैं, उन्होंने अपने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने नो उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं कि आप बाहर जाएं, कोर्स वर्क करके आएं, आपका जो सीखने इंटरेस्ट है उसकी एक्सपर्टीज लें, और फिर आके इसको यहाँ पे अप्लाई करें। तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है पैथोलॉजी के हवाले से। हम इस वक्त उसी लेवल पे डायग्नोसिस कर रहे हैं जिस लेवल पे इंटरनेशनली हो रहा है। हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर करके दे रहे हैं,
एनजीएस यहाँ पे हो रहा है विच इज नेक्स्ट जनरेशन सेंसिंग। अच्छा, इसके अलावा हम जेनेटिक्स लेवल पे जाके डायग्नोस्टिक दे रहे हैं, हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हम मॉलिक्यूलर लेवल तक तो हम चले गए, इम्यूनोलॉजी भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए। तो एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि पैथोलॉजी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान बड़ा प्रोग्रेसिव है और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम हो रहा है। That's very promising to hear, and I would say that's very promising to hear, especially considering जैसे आपने बात की कि there is a dearth of pathologists in general in Pakistan, but along with that, it is emerging as a new field as well. What do you think would motivate others, or especially women, to pursue fields like pathology in future? क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि उस तरह से एक एम के तौर पे अभी भी एटलीस्ट मेरे सर्कल में इस तरह से नहीं होता कि भाई हमने पैथोलॉजिस्ट बनना है, भले वो इट्स अ फीमेल डॉक्टर और मेल डॉक्टर। तो व्हाट डू यू थिंक वुड चेंज दैट? वी डिड डिस्कस कि अगर हम अपने करिकुलर अंडर ग्रेड लेवल पे या करिकुलम में इस चीज को लेकर आए तो वो एक चीज हो सकती है, बट उसके अलावा और क्या चीज हो सकती है जिससे हम वी ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल in this emerging field? आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम बीइंग पैथोलॉजिस्ट हम अपने स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस दें कि एक्चुअली पैथोलॉजी है क्या। और अगर बीइंग माय स्टूडेंट शी नोस कि मैं अपनी क्लास में ये सब बताती रहती हूँ कि लैब में हम किस तरह काम करते हैं और हमारे क्या क्या टास्क होते हैं, हम किस तरीके से फाइनल साइन आउट करते हैं रिपोर्ट। तो ये एक्सपोजर देना बड़ा जरूरी है, बच्चों को फेमिलराइज करना बड़ा जरूरी है, तो वो इंटरेस्ट लेंगे। कुछ लोगों को पैथोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बड़ा पसंद होता है, मुझे भी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे पैथोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है तो मैं इसका आगे कोई स्कोप है कि नहीं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमने पैथोलॉजी तो करनी है लेकिन अब आगे गाइड करेंगे किस तरह होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक पूरे बैच से एक स्टूडेंट भी पैथोलॉजिस्ट बनने की तरफ चला जाता है, तो मेरे लिए तो बहुत अचीवमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो करिकुलम की जैसे मैंने बात की, दूसरे वर्कशॉप और सेमिनार्स होने चाहिए। हमने अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक अवेयरनेस सेशन किया था विद रिस्पेक्ट टू पैथोलॉजी एज अ करियर पाथ, और उसमें हमने सारे करियर पाथ बताए थे, जितने भी पैथोलॉजी की फील्ड्स हैं, कैसे आप एग्जाम देते हो, एफसीपीएस के लिए किस तरह पढ़ना है आपको, और फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग है, पाकिस्तान में तो डर है, पूरी दुनिया में सब डर है। यूके से लोग जो है, यूएस में लोग जो है ना, वो स्टूडेंट्स को खींच रहे होते हैं कि आ जाओ जी मैं तो रेजिडेंसी कर लूँ, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट बन ही नहीं रहे हैं लोग। आप सोचिए कि पैथोलॉजिस्ट नहीं होंगे तो सर्जन हो गए, फिजिशियंस हो गए, अपना काम कैसे कैरी ऑन करेंगे? जो बात है क्योंकि बिल्कुल ऐसे है। आपकी डायग्नोसिस हमारे ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए एग्जैक्टली। पैथोलॉजिस्ट को कहते हैं पैथोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर डॉक्टर। Yes. That is what I had read as well, and that is so यस। true because as a doctor myself, as a junior doctor myself, I can testify कि हमें हर point पे we need pathologist, we need immunohistochemistry को analyze करने वाले, we need people जो ये सारी डायग्नोस्टिक साइट को हैंडल कर रहे हो। और उसके बगैर हमारी अपनी डायग्नोसिस जो है वो नामुकम्मल है, अगर वहां से हमें, बल्कि इनफैक्ट अगर वहां से डिले होता भी है ना, तो फिर हमारा भी काम डिले होता है कि हम आगे पेशेंट को नहीं बता सकते, हम आगे अपनी ट्रीटमेंट प्लान को डिजाइन नहीं कर सकते, हम आगे अपना प्रोग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान जो भी सब कुछ है वो हम आगे नहीं कर सकते फर्दर। And I just want more and more conversations to be held like this, or more and more exposure to be given to students as well. क्योंकि undergrad level पे again I will zoom in on the undergrad level, because वहीं से मुझे ये बहुत कमी महसूस होती है कि हम undergrad levels पे वार्ड सारे दिखाते हैं, एटलीस्ट मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनियोप्स, रेडियोलॉजी भी इवन वार्ड्स उसकी रोटेशंस होती हैं, बट लेबोरेटरी की कुछ भी नहीं होती। जबकि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, जब हम हाउस जॉब में आते हैं, तो हमारी इनफैक्ट डांटें भी जो है ना उस चीज से पड़ी होती हैं, हमारी दौड़ें भी लग रही होती हैं लेबोरेटरी में कि हमें लेबोरेटरी में फलाना टेस्ट जमा करवाना है, उसकी रिपोर्ट चेज करनी है, उसकी रिपोर्ट सेंड करनी है। सो मच जो हमारी डेली प्रैक्टिस में उसकी इन्वॉल्वमेंट है ही है, उसके बगैर तो कर ही नहीं सकते। तो आई एम ग्लैड टू नो कि ये इट इज प्रोग्रेसिंग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट योर स्टूडेंट्स गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू to pursue this field as well.
we do need more and more health professionals, and I think as medicine is a very interconnected field. हम कोई भी एक फील्ड जो है मेडिसिन की या स्पेशलिटी जो है ना, वो स्टैंड अलोन नहीं चल सकती। ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर है तो वो सिर्फ अपनी ऑर्थोपेडिक सर्जन की बुनियाद पे ही और शी कैन नॉट रन हिज प्रैक्टिस। Medical professional or a general physician, he or she cannot run his practice if he does not have a team around him, and that team includes all these other professional areas as well. So speaking of pathology, um, do you have any rare or interesting case जो आपने encounter किया हो? पहले आपने बताया था कि कुछ cases काफी मुश्किल होते हैं, तो कोई ऐसा special या rare case है which you will like to talk about? काफी सारी चीजें थी। मैं क्योंकि अब जो है वो रिसर्च साइड पे ज्यादा हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट थी, तो हमारे पास एक कितनी बड़ी इंटेस्टाइन आई थी, उन्होंने कोलेक्टमी की थी और वो ह्यूज लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा स्पेसिमेन आया हुआ था। और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था क्योंकि वी हैव टू ओपन दैट अप द होल एंड क्लीन सारी, Yes. वो बड़ा मेसी होता है। लेकिन ये सरप्राइजिंगली जब हमने इसको ओपन किया है मैंने, क्योंकि ग्रॉस हमें इसमें ग्रॉस करनी होती है और फिर हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो ग्रॉस तो आपने ही देखनी है ना। तो जब हमने इसको ओपन किया है ना, तो इट वाज फिल्ड विद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स। और मतलब आपने फैब पढ़ा होगा, फेमिलियल Yes. एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। Polyposis. Yes. हाँ, वो हमने अपनी आंखों से उस वक्त देख के उसको केस रिपोर्ट किया था, क्योंकि वो हमारी मेरी लाइफ का तो वो पहला ही कोई मतलब हंड्रेड्स नहीं थे, वो म्यूकोजा नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ पॉलिप्स Yeah. नजर आ रहे थे इतने बड़े स्पेसिमेन के अंदर। तो इमेजिन कि वो क्या उस वक्त, मतलब और कैमरा लिया हुआ उस वक्त, तो मोबाइल फोन भी शायद बहुत स्मार्ट नहीं थे ना, जब हम रेजिडेंसी कर रहे थे। तो कैमरा तो होते थे लेकिन वो हाई क्वालिटी वगैरह नहीं होती थी। लेकिन वो हमने कैमरा लेके जल्दी जल्दी पिक्चर्स और फटाफट से, तो ये तो केस रिपोर्ट होगा जिस तरह का वो केस था। तो इस तरह की काफी केसेस आते थे, अब तो मुझे भूल गया है कि हमने क्या क्या रिपोर्ट किया है, लेकिन काफी यूनिक चीज आती थी। मतलब वो जो क्लिनिकल पिक्चर हम अपनी रॉबिन्सन में और हाँ गॉर्जन में पढ़ते हैं, वो आपने एक्चुअल में देखी थी किस तरह से फैब हाँ, दिखता वो तो है। है। और मैं ये बताती That- होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, एग्जाम्पल दे दे के ना, तो उनको याद हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, जो पैथोलॉजी की रेजिडेंसी होती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि एग्जैक्टली कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, हाउ डज इट हम्म गो, लाइक आई नो कि उसका एग्जाम अलग होता है, एफसीपीएस पार्ट 1 उसका अलग होता है, बट उसके अलावा कितने हम्म साल की होती है और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, which what type of hospitals do you recommend yourself if someone wants to pursue pathology for FCPS in this country? ओके। कंट्री वाइज तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, सारे बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं पाकिस्तान के, टीचिंग हॉस्पिटल सबके अंदर पैथोलॉजी ट्रेनिंग होती है। डीएमसी के साथ हम सिविल हॉस्पिटल में थे, वहाँ ट्रेनिंग नहीं होती थी, लेकिन दाओ ओझा में अब है और बहुत वेल स्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। इस तरह जेएसएमयू में अभी हमारे पास पैथोलॉजी ट्रेनिंग एमफिल लेवल पे हो रही है, लेकिन एफसीपीएस अभी स्टार्ट होने लगा है। माइक्रोबायोलॉजी वुड बी द फर्स्ट पॉइंट जहाँ हम शुरू करेंगे। जो स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हैं, कराची की बात करूँ तो आ खान है जी, लियाकत नेशनल है, जियाउद्दीन नॉर्थ और एसआईयूटी और शिफा। ये सही। 5 मेरे जहन में अभी आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे और स्टैंडर्डाइज से कहते हैं ना, प्रोटोकॉल वाइज रिपोर्टिंग होती बिल्कुल। है। अच्छा, उसके बाद आप चलेंगे तो ये हैं छोटे छोटे फिर लेबोरेटरीज में जो होती है प्राइवेट में, लेकिन आई वुड से कि हमें बड़े सेटअप में काम सीखना चाहिए जब हम रेजिडेंसी बिल्कुल। करें ना। अच्छा, बिल्कुल इसके सही। अलावा शौकत खानम है, लाहौर साइड चले गए तो चुगताई है, और शौकत खानम है। इस्लामाबाद चले जाएं तो आपके पास है शिफा। सिम्स है, शिफा है, सिम्स है, और भी हैं जो सब मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। सब बड़े हॉस्पिटल जितने भी है ना, वो सब बहुत अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं और बड़ा मतलब आप जाएं और आपका एफसीपीएस तो यूं निकल जाता है। मैंने देखा है पार्ट 2 बिल्कुल। निकालना मुश्किल नहीं होता है ना, आप इतना बिल्कुल। उसको प्रैक्टिस कर चुके होते हो कि वो जुबान। निकल जाता यस। यस। एंड द ट्रेनिंग पीरियड वो कितने साल का होता है? है। 4 ईयर होता है। सही है। आपने 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, आईएम देना है, आईएम के बाद जो है फिर 2 साल होगी और फिर आपने पार्ट 2 देना सही सही। एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो परस्यू सुपर स्पेशलिटी या सब सब है। फील्ड भी।
हाँ, सुपर स्पेशलिटीज भी हैं, डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप, मैंने जैसे अभी बताया कि आप डर्मापैथ में कुछ करना चाह रहे हैं, ब्रेस्ट पैथोलॉजी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी फील्ड कर सकते हैं, या आप सपोज मॉलिक्यूलर में कुछ करना चाह रहे हैं। मॉलिक्यूलर की अभी जो पाकिस्तान में जो सब स्पेशलिटी है वो हिस्टोपैथोलॉजी के बाद आप साइटोलॉजी कर सकते हो, साइटोपैथोलॉजी। उसमें आपको सही। FCPS के बाद एक और डिग्री मिल जाती है, लेकिन इंटरनेशनली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप FCPS के बाद आप FRC पैथ दे सकते हैं। आपने FRC पैथ पार्ट 1 दे दिया फॉरन, और उसके बाद थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके और जो है पार्ट 2 भी निकल जाता है। काफी सेंस में निकाला है, पढ़ना बहुत पड़ता है ऑब्वियसली, उसका बिल्कुल। लेवल थोड़ा थोड़ा सा आप है हमसे, लेकिन मैंने काफी सारे लोग को देखा है कि जो लोग एनरोल हुए हैं उन्होंने क्लियर कर लिया है हॉस्पिटल। सही सही। नाइस, दैट्स नाइस टू नो। Okay. So what is next for you in this field? What do you think, or how do you see this field for yourself in future years? इन टीचिंग मैं इस वक्त PhD कर रही हूँ पैथोलॉजी में ही, और मेरी जो फोकस है वो है सब डिजिटल पैथोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, which we are using। इस दुनिया जो है वो दुनिया में डिजिटाइज हो गई है। डिजिटाइज का मतलब ये है कि आपने अपना वर्क फ्लो जो है लेबोरेटरी का वो डिजिटाइज कर दिया। मतलब जो चीज़ मैं माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ वो स्लाइड अब स्कैनर में जाती है और पूरी स्कैन हो जाती है, और फिर हम स्क्रीन पे बैठ के डायग्नोसिस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं बीमार हूँ और मैं लैब नहीं जा सकती, तो मेरे पास पासवर्ड है, मैं अपने लैब से कनेक्ट करूंगी और जो मेरे केसेस डिजिटाइज हो गए हैं वो मेरी स्क्रीन पे आ जाएंगे। मैं बैठ के डायग्नोसिस करके अपनी रिपोर्ट भेज दूंगी लैब से। तो ये एक वर्कफ्लो पूरी दुनिया में कोविड में आया है, क्योंकि जी, हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे थे ना लोग, तो बिल्कुल। उन्होंने डिजिटल स्कैनर्स बना लिए। सही। और स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड होती है वो आप उसके अंदर डाल दें, वो स्कैन करके आपको दे देगी। इसका पूरा वर्क फ्लो है। काफी सारी लैब्स इन US और वेस्ट यूरोप में डिजिटाइज है उनका वर्क फ्लो। पाकिस्तान में सही। हमें फाइनेंस के बहुत इश्यूज हैं, तो मैं इस वक्त बिल्कुल। डिजिटल पैथोलॉजी पे काम कर रही हूँ, और जो मेरा PhD का ओके। फोकस है, और हम AI मॉडल्स बना ओके। रहे हैं। और AI मॉडल्स अब बहुत वो सब कर रहे हैं, जैसे ChatGPT ने आपको बता दिया कि AI क्या क्या कर सकता है, तो आप उसको दिखाएंगे जो स्लाइड है, तो वो बता देगा कि जिसमें ट्यूमर है नहीं है। तो जिस लेवल का वो मॉडल है, ट्यूमर टाइप में बताना है तो ट्यूमर टाइप बता देगा, तो उससे भी काम हो रहा है। तो ओके। इट इज वन ऑफ माय प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू नो विद माय PhD एंड आफ्टर माय PhD मेरी स्पेशलाइज फील्ड जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI की। That's super cool. That's so cool to know, especially knowing that AI is the future. So AI or pathology ka mix is, that sounds so cool. That's lovely. And Okay. something really new too. Yes, Yeah. something so new. I had no idea about Mhm. this कि pathology का काम इस तरह से भी हो सकता है। कि आप अपने घर बैठकर you can scan images को, you can still tell about your expertise on those scanned images if you cannot go to the lab for some reason. So that's a cool thing, and especially integrating the artificial intelligence and making artificial intelligence models that help with the work, that is super fast as well. That will make the Yes. work easier Save and time. efficient. Yes, it saves time. That's very cool to know. I'm so happy to know that कि इस front पे भी काम हो रहा है, and I'm so glad that you are working on it, and we will love to see इंशाल्लाह कि आपके जब PhD का काम complete हो Inshallah. जाएगा, तो maybe we can sit at that time as well and discuss how things have progressed from Yeah, today sure. until inshallah when that has been done. So that will be a Inshallah. interesting conversation as well. Okay, so I think we have talked a lot about pathology and teaching, and let's talk about the other aspect, the creative aspect of your life, which is poetry and your writing. So let's talk a bit about your career in writing. How did you get into it? What inspires you to write, and like what is the process?
बिकॉज एज डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे जहन में यही चीज आती है कि भाई डॉक्टर्स है तो वो तो सूखे सूखे से ही होता है ना, उनका तो साइड पे कोई रुझान नहीं होता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ लॉट टूवर्ड्स दैट साइड एज वेल। आई ऑल्सो राइट, ऑल्दो मैंने कोई बुक पब्लिश नहीं की अब तक, बट मैं भी अक्सर लिखती हूँ, एंड आई लेट आउट दैट क्रिएटिव जोन ऑफ माइंड। सो आई फाइंड कि मेरे अपने सर्कल्स में जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ये एक अलग साइड होती है। वो अलग बात कि वो उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग के दौरान या अपनी अंडरग्रेड के दौरान ही दे लेट गो ऑफ दिस साइड ऑफ देम। बट आई वुड वांट टू आस्क यू, हाउ डिड यू find this side in you and how did you make it work this way as well, कि अपनी मेडिकल करियर के साथ साथ you also kept this going too? अच्छा, ये प्रोफेशन तो ये मेरा है नहीं लिखना लिखाना। मैंने बस ये होता है ना कि आप जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, सिंस आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस, कि जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप बहुत फील कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर चीजें बनना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद। वर्ड्स भी क्रिएट होते हैं और आप फीलिंग्स भी आती हैं, टाइम्स यू क्रिएट स्टोरीज ऑल्सो। तो जिस जमाने में मैं घर पे थी, जब मैंने ब्रेक लिया हुआ था अपना करियर से, और मुझे मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे परसू करूंगी मेडिसिन या नहीं। उस जमाने में मैं आई वॉज ऑलवेज अ रीडर। पढ़ना मेरी आदत थी, जब भी कोई मेरे फेवरेट ऑथर्स की बुक्स आ रही हैं तो मैंने जाना है और लेना है, पढ़ना है। तो जब पढ़ता है बंदा तो फिर वो लिखना भी शुरू हो जाता है। तो यही हुआ मेरे साथ भी। उस जमाने में बस टाइम था बहुत, तो पेपर पेन पे ही, उस वक्त तो मैंने पेपर पेन पे ही लिखा था। मेरे बाकायदा लिटरली फोल्डर्स बन गए थे, इतना मैंने स्टोरीज लिखी। और मुझे अपना लिखना अच्छा नहीं लगता था, और मैं पोइट्री भी लिखती थी, लेकिन मुझे पोइट्री में बहुत पहले से लिखते हैं, आई थिंक आई वाज इन बिफोर एमबीबीएस तो। लेकिन मुझे वो अपनी अच्छी नहीं लगती शायरी। एक होता है ना मैच्योरिटी वाला लेवल, वो मुझे फील नहीं होता था, तो मैं किसी को दिखाती नहीं थी। तो ग्रेजुअली आई थिंक विद टाइम ये चीजें खुद ब खुद पॉलिश हो जाती हैं अगर आप लगे रहे। तो लिखना तो बहुत पहले से ही लिखा, कहानियां लिखी बचपन में, बच्चों के सालों में कहानियां लिखी मैंने। यहाँ पे उर्दू में कहानियां लिखी, कुछ डाइजेस्ट में छपी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, और जबरदस्त। मैं स्टार्ट किया था एक नॉवेल के ऊपर काम करना। तो वो नॉवेल तो भाई मेरा काम नहीं है, नॉवेल लिखना डॉक्टरों का काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है, आपको बड़ा वक्त देना। फिर बिल्कुल। अच्छी चीज ये हुई कि ये ब्लॉग साइट्स होती हैं, तो मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था। तो हुआ ये कि वो जब मैं अपना लिखती थी ना, मुझे किसी ने कहा कि इधर उधर आप लिखते हैं तो आपको, मैं इंग्लिश पोएट्री लिखती थी, तो वो या ट्रांसलेशन पे मैंने काम शुरू किया। फेसबुक नया नया आया था उस वक्त, तो सोशल ग्रुप ज्वाइन किए गए थे आर्ट लिटरेचर के। तो वहाँ पे एक दफा किसी ने गुलजार की एक नज्म डाली, बड़े मेरे फेवरेट पोएट हैं, तो मैंने उधर ही 2 मिनट 5 मिनट के अंदर उसकी एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन पोस्ट कर दी। वो सारे लोग शुरू हो गए, ये तो बड़ी कमाल की, आला पाए की ट्रांसलेशन, ये वो कैसे लिखी, फलाना ये। मैं कहता, मैं लिखती रहती हूँ। कहते हैं आप उसको अपना ब्लॉग बना लें तो वो आपका सिलेक्शन जमा हो जाएगा। उस मशवरे का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं 2010 में अपना एक ब्लॉग बनाया था, और वो वैसे ही था कि बस मैंने जो भी जहन में आया लिख दिया। तो वो मैं रोज रात को सोने से पहले आदत थी कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, वो जमा होता गया, होता गया। एक दिन इतने इतने पेजेस हो गए कि मैंने कहा कि चलो भाई अब इसकी किताब बन सकती है। खैर वो एक अलग नहीं, मरहला है, मैं बोर नहीं करना चाहूंगी। नहीं, नहीं, आई थिंक दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज अच्छा। वही ना कि ये जो क्रिएटिव साइड है ना, ये जैसे मैंने मेंशन किया ना कि बहुत सारे लोगों की होती है, बट स्पेशली हम इस फील्ड में ना उसको भूल जाते हैं। हम इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं अपने टाइम नहीं क्लिनिकल दे साइड पे सकते। कि टाइम भी नहीं देते, और शायद वो उतनी एनर्जी भी नहीं बचती आपके हाँ, आफ्टर योर टफ ड्यूटी आवर्स। सो आई वुड हाँ। वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू मेंटेन दैट। अच्छा, हुआ ये कि मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी राइटिंग पे। उर्दू में तो मैंने आपको कहा ना कि मैंने छपवा ली, तो चले वो छप गई और रीडर्स ने कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया। शायरी का बंदा क्या करे, उर्दू की शायरी तो मैं थोड़ा बहुत उर्दू आजाद हंसने से मैंने कही है, ऐसा नहीं कि उर्दू में मैंने बिल्कुल शायरी नहीं की। लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन होती है ना उर्दू में, बड़ा हिस्सा होता है, जदीद उसका वजन काफिया। होता है, बिल्कुल। उसका वजन होता है, उसको बैलेंस करना होता है। तो वो बड़ी क्राफ्टिंग चाहिए होती, जो मैं सीखने के हक में नहीं थी और मतलब टाइम भी नहीं था। तो इंग्लिश वाज यूज टू केम नेचुरली टू मी। तो मैंने उसमें ज्यादा लिख लिया। जब वो जमा हो गया तो अब ये इशू था कि अब कोई साथ चाहिए ना आपको, कोई तो जिसको दिखाएं। अब लोगों की तरफ से तो रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन
वो भी मेरा सर्कल बड़ा लिमिटेड है, मैं बहुत बड़े सर्कल्स नहीं रखती, हमेशा से मेरा बहुत छोटा सा ही सर्कल है। तो फिर किसी ने फिर संतर सहतार साहब मेरे बड़े फेवरेट ऑथर हैं, तो उनसे कनेक्ट किया किसी तरह कराची लिटरेचर फेस्टिवल के थ्रू। और फिर मैंने एक दफा वो मुझे मिले थे कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, तो मैंने उनको कहा कि मैं क्या दिखा सकती हूँ आपको अपनी पोइट्री आपको। तो उन्होंने कहा भेज दो, मैंने कुछ पेजेस की एक बुकलेट बनाई और उनको भेज दी सैम्पल के तौर पे ना। और उसके बाद मैं गायब हो गई थी। आई हैड इज फोन नंबर, मतलब मैंने कभी कुछ सहमत नहीं की, और मैं वो कहते हैं जरूरत नहीं थी कि मैं ये पूछूं कि भाई आपने इसको देखा पढ़ा या नहीं। खैर वो मुझे किसी तीसरे बंदे ने आके मैसेज किया कि फेसबुक पे कि सर तो आपको ढूंढ रहे हैं, आप ही हैं वो नाजिश जफर। हाँ, ओह। मैं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कौन है वो डॉक्टर जिसको मुझे पोस्टर भेजी थी। तो उन्होंने कहा कि वो तो आपको ढूंढ रहे हैं, आपने उससे रब्ता नहीं किया। मैंने कहा क्या डांट पिटेगी, छोड़े हैं। कहते हैं नहीं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया है एंड ही वाज रियली हैप्पी अबाउट योर पोएट्री, और उन्होंने कहा है कि उसको बोलना कि लिखती रहे। तो उससे मुझे जबरदस्त। बड़ी एंकरेजमेंट मिली। और फिर जब मैंने अपनी किताब छपवाई तो लाहौर से छपवाई, और मेरे साथ थे जब मेरी पब्लिशर से मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, मेरी उसको पेपर्स तक बताया कि ये वाला पेपर रखना, पोइट्री में ये वाला पेपर यूज होना चाहिए। और मतलब मेरी हर चीज का अप्रूवल मैंने उनसे लिया। मेरी किताब छपने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ज़ाहिर है वो साथ है मेरे। तो इस तरीके से मेरी किताब छप गई। अब तो मेरे पास वाकई में टाइम नहीं है कि मैं जो है ना आजकल तो बिल्कुल टाइम नहीं है। नाइस, दैट्स सो गुड टू नो। तो ये आपकी किताब कहाँ से मिल सकती है? आपकी किताब हमारे सिंध मेडिकल कॉलेज में तो रखी गई है। मेरे पब्लिशर होते हैं लाहौर में, इल्मा खान, वहां से भी मिल सकती है। लेकिन कराची में फिलहाल जो है आप मुझसे मेरे थ्रू ले सकती हैं। सिंध मेडिकल कॉलेज में हमारे बुक शॉप है, उसके अंदर भी रखी सुनिए सुनिए सुनिए, जबरदस्त। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि दैट होल प्रोसेस वो किस तरह से आपके लिए इवॉल्व हुआ, एंड है। अगेन थिंग्स वर्कड आउट। बट आई एम सो ग्लैड कि वो आपने क्रिएटिविटी जो आपकी थी, यू एक्सप्रेस दैट, एंड नाउ यू हैव इट लिटरली इन योर हैंड्स इन हार्ड कॉपी। तो ये बड़ा अच्छा लगा सुन। So, all right. So, I think by now we are done with a lot of conversations. We had a lot of discussions, and I hope that the people who are watching us will be having fun as well and will have learned a lot of new things from you as well. Let's do one last thing before we sign off, and that is a rapid fire segment. So, I'll be asking you 5 questions in a rapid manner, or let's begin that. Are you ready? Let me know when you're ready. I think we can go ahead. Okay, all right. So, what's one pathology term you love to say? Diagnosis. Okay. If you could invent a new stain, what would you name In rapid fire, how much time do I have? it? 30 seconds. I don't know. I don't know. I really haven't thought about it. Okay, I have no clue. that's all right. Acha, so, what's one thing you wish students knew before entering your class? They should know what ethics. That's important. If you could do one thing for the rest of your life, what would you choose from the following? Teaching, writing, or working full-time as a pathologist? Teaching. Okay. If you could have a superpower for a day, what would it be? Superpower. Yeah, I would fly across the whole world. you would what? I would fly across the whole world, the globe. Okay, I you're just fond of love traveling. traveling. All right. Yes. Okay. If you could trade places with any other profession for a day, what would it be? Um, I think it would be journalism, writing, journalism. That's interesting. Okay, and what is your favorite pathology joke or anything? I'm not a person who makes jokes, but or who enjoys jokes much. तो मुझे याद भी नहीं रहता बिल्कुल भी इसलिए। Okay. तो पैथोलॉजी में तो खास हम जोक करते तो नहीं। आई एम अ बोर पर्सन।
Right. That was a fun one. I think that rounds up our rapid fire segment as well. And that also brings us to the end of this podcast. And thank you so much, Dr. Nazish, for being here, for giving us your contribution and for giving us such valuable insights. I'm sure all of us here and the one who are listening as well right now would have enjoyed listening to you, listening about pathology as a field, and I'm so glad that we talked about a different field than it's usually or mainstream it talked about. So thank you so much for that. Thank you so much for being with us, for being patient. And yes, thank you. Thank you once again. If you have anything to say at the end, the floor is all yours. And yes, we will end with that. I think it's a very good initiative, Amara. Thanks a lot, Arad, Zainab, associated with me for that. And I'm really honored that you selected me since you just said that this is your first episode. So again, quite an honor for me that I'm part of your initiative. I think it's a good initiative. We should, call and invite people, women who are struggling day and night in the field, and there are so many things that they would like to, talk about. That as a whole, and as from the outside, that we don't know and we should know, and the world should know. So I think ये बहुत अच्छा initiative है और I really wish you best of luck. It was an absolute pleasure to be here and talking to you today. Thank you. Nice Thank you meeting. so much. Thank you so much. And is there any advice that you would like to give to those who are starting their career in medicine or thinking of joining pathology or pursuing pathology as their specialty? Yes, I would like to आप pathology join जब भी करते हैं कोई तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा वर्कआउट कर लें कि आप pathology की कौन सी सब स्पेशलिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें और कोई भी फील्ड में जाने से पहले मैंने आपको बताया कि 5-6 सबसे स्पेशलिटीज हैं पाकिस्तान में, तो आप उसमें इलेक्टिव कर लें। इलेक्टिव के ऑप्शन के लिए कोई भी लैब मना नहीं करती, किसी भी आप अच्छी लैब में जाएं, एप्लीकेशन लेके आपके पास हाउस जॉब शुरू होने से हाउस जॉब के बाद या हाउस जॉब शुरू होने से पहले थोड़ा टाइम होता है, तो आप जो इलेक्टिव करते हैं उसमें एक इलेक्टिव आप अपना पैथोलॉजी का जरूर रखें, जिससे आपको बहुत अच्छी एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस पैथोलॉजी बन जाए। That's a good advice. Actually, electives are a must to do, I would say, for any field you want to do, you should be doing an elective in it beforehand. So thank you for that advice and thank you for your presence overall as well, Dr. Nazish. It was a pleasure having you. I really enjoyed conversing with you, and I do look forward to inshallah conversing with you again after your PhD has been done as well. I think that's one thing that I'm looking forward to. Inshallah, inshallah. And all the very best. And again, thank you so much. Thank you. Bye-bye. All right. Thank you, everyone, for being here on the first episode of Women with Steths. I hope that you had a good time. You had fun listening to this conversation and you gained a lot of insights from it as well. This was a fun conversation and a very insightful one that we had with Dr. Nazish. We talked about pathology, we talked about teaching, and we talked about a little bit about writing as well. So thank you for that and stay tuned for more episodes as well. Lafes.